कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? गुड। अब तक हमने कितनी सर्किट पढ़ी? 2 सर्किट। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर, सेकंड पढ़ी एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। आज किसकी बारी? कैपेसिटर की बारी। आज हम एसी वोल्टेज देने वाले हैं किसको? कैपेसिटर को। तो आ जाते हैं थर्ड सर्किट पे। एसी वोल्टेज applied to a capacitor। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर पढ़ें उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जब डीसी सोर्स कनेक्ट करते थे कैपेसिटर के साथ तब क्या होता था। व्हेन वी कनेक्ट अ डीसी सोर्स विथ कैपेसिटर, एट द टाइम प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर गेट्स चार्ज। When capacitor is fully charged, at the time current flowing through the circuit falls to 0। जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा। दैट करंट विल फ्लो फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ थोड़े समय तक करंट फ्लो होगा और उसकी वजह से कैपेसिटर की प्लेट क्या होंगी? चार्ज होती जाएंगी। तो कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज होती जाएंगी। When potential difference between two plates of capacitor becomes same as the potential difference applied by the source, then the capacitor is said to be fully charged and after that current flowing through the circuit falls to 0। ये चीज़ होती थी डीसी में। अब एसी की बारी। एसी को कनेक्ट करें तो कैसी सिचुएशन होगी? नाउ इफ वी कनेक्ट एसी सोर्स विथ one capacitor, here I am considering purely capacitive circuit। कैसी सर्किट कंसीडर करें? प्योरली एसी कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दैट इज C। दिस इज एसी सोर्स हैविंग EMF E, राइट। सपोज एट एनी इंस्टेंट करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन। इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। ड्यू टू this current, what will happen? This plate will get positively charged and this plate will get negatively charged। क्या ठीक? It means charge on the plates of capacitor goes on increasing। Now whatever potential difference across the source of EMF, same potential difference is applied to the capacitance, yes or no? Suppose potential difference across AC source is V is equal to Vm sin omega t। V is equal to Vm sin omega t। मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी सोर्स क्या है? V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या ठीक? नाउ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन टू दिस 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। व्हेन दिस मच पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन टू द कैपेसिटर C, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर will be same as the potential difference applied by the AC source। V is equal to Q by C, yes or no? ये फॉर्मूला हम पढ़े। कैपेसिटेंस C is equal to Q by V। So what is the potential difference applied by this AC source? That is V। If we apply Kirchhoff's rule, then we will get V is equal to Q by C। So applied potential difference, that is Vm sin omega t। So Vm sin omega t is equal to Q by C। Therefore Q is equal to Vm C sin omega t। ये मिला हमें चार्ज। बट चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल चेंज विथ टाइम। ये चार्ज चेंज होता जाएगा समय के साथ, बिकॉज दिस वोल्टेज
विल चेंज विथ टाइम, तो ये चार्ज भी चेंज होगा. ड्यू टू दैट वी विल हैव इलेक्ट्रिक करंट. If I want electric current, then we have to differentiate both the sides with respect to time t. So differentiating both the sides with respect to time t, then dq by dt is equal to d by dt of Vm sin omega t. Right? What is dq by dt? That is electric current at any instant. I is equal to Vm, that is peak voltage that is fixed. So Vm, एक और चीज़ रह गई C, Vm sin omega t into C. तो C आगे लिख देते हैं, C Vm sin omega t. C, that is capacitance of the capacitor, that is also fixed. So Vm C as it is, d by dt of sin omega t. Right? What is the differentiation of sin omega t? Therefore I is equal to Vm C differentiation of sin omega t, that is cos omega t, cos omega t into, this is a differentiation with respect to time. टाइम के साथ क्या है? ओमेगा, तो ओमेगा भी आएगा cos omega t into omega. If we take this omega out, then this electric current can be written as I is equal to Vm omega c cos omega t. Right? तो ये मिला हमें इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन, I is equal to Vm omega c cos omega t. This is equation number 2. अब आप बोलोगे सर क्या इस इलेक्ट्रिक करंट को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, क्या ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई एम कोस ओमेगा टी? हाँ लिख सकते हैं. कोस के साथ जो है वो क्या बनेगा? आई एम. देयरफॉर I इज इक्वल टू आई एम कोस ओमेगा टी. इक्वेशन नंबर 3 वेयर I m इज इक्वल टू वी एम ओमेगा सी. क्या बना I m? वी एम ओमेगा सी. अब ध्यान से देखो, I बाई वी, देयरफॉर I m बाई वी एम शुड बी इक्वल टू 1 अप I m बाई वी एम शुड बी इक्वल टू ओमेगा सी. यस सर, I m बाई वी एम शुड बी इक्वल टू ओमेगा सी. तो ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, वी एम बाई आई एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी. वी एम बाई आई एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी. वी बाई आई क्या बनता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर. सो वी बाई आई मस्ट बी इक्वल टू आर. सो दिस 1 अपॉन ओमेगा सी, दिस 1 अपॉन ओमेगा सी we can compare with the resistance of the resistor connected in this circuit. इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं? रेजिस्टेंस के साथ. V बाई आई इज इक्वल टू आर, तो ये क्या बनेगा? रेजिस्टेंस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू एक्स सी विच इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस. इसे क्या बोला जाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. हम लोग जानते हैं V बाई आई क्या बनना चाहिए? रेजिस्टेंस. सो हियर दिस 1 अपॉन ओमेगा सी बिहेव एज रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट. ये सर्किट के रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा. 1 अपॉन ओमेगा सी इज एनालोगस टू रेजिस्टेंस R, एंड दिस 1 अपॉन ओमेगा सी इज कॉल्ड XC, एंड XC इज नथिंग बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस. जैसे इंडक्टर में मिला था ओमेगा L इज इक्वल टू XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस. यहाँ पे क्या बन रहा है? 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू XC, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सो हियर वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज, देयरफॉर I m इज इक्वल टू
वी एम अपॉन 1/ωc, I इज इक्वल टू V बाय R, Im इज इक्वल टू Vm अपॉन 1/ωc. This is nothing but Vm upon Xc, where Xc that is capacitive reactance of the circuit. क्या ठीक? तो इलेक्ट्रिक करंट का हमें इक्वेशन मिल चुका, पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन मिल चुका है. वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी, वेयर आई एम दैट इज वी एम अपॉन एक्सी, वी एम दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज दैट इज पीक वोल्टेज upon Xc that is capacitive reactance of the circuit. The way resistance limits the current in purely resistive circuit, this Xc limits the current in purely capacitive circuit. जैसे रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को कंट्रोल करना. सेम वे दिस Xc कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल कंट्रोल द करंट इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. क्या ठीक? अब मुझे बताओ यहाँ पे यूनिट क्या बनना चाहिए? व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ Xc, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या बने? व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस? दिस Xc इज एनालोगस टू रेजिस्टेंस, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओहम. सो यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज ओहम. क्या बनेगा यूनिट? ओहम. क्या ठीक? सो यूनिट ऑफ Xc दैट इज ओहम. दिस Xc हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस. तो ये बात हुई AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर के लिए वोल्टेज और करंट. बट ये थियरी अभी ख़त्म हुई नहीं है. अभी हमें क्या करना होगा? वी हैव टू फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट. फेज डिफरेंस निकालना है. फिर क्या करते हैं? सर्किट में क्या ड्रॉ करते हैं? फेजर डायग्राम. फिर क्या करना है? हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. फिर क्या निकालना है? पावर. तो ये सारी चीज़ें अभी बाकी हैं. पर फेज डिफरेंस निकालें उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए. तो जल्दी से इतना लिख लीजिए. तो हमें कितने इक्वेशन मिले? 3. फर्स्ट इक्वेशन क्या था? V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, राइट? इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 3 क्या था? I इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी. अब निकालना है हमें फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस निकालना है तो करंट इज द फंक्शन ऑफ कॉस, वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ साइन. फेज डिफरेंस निकालना है तो इसको कॉस को किस में कन्वर्ट करना होगा? साइन में. तो मुझे बताओ क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? देयरफॉर I इज इक्वल टू आई एम साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी. क्या ऐसा लिख सकते हैं? साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा. हमें ओमेगा टी क्या चाहिए? पॉजिटिव. इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे? प्लस ओमेगा टी. देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. क्या ऐसे लिखे तो दिक्कत नहीं है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. ये हमारा था इक्वेशन नंबर 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. आई एम दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पीक वैल्यू. I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. नाउ कंपेयर द फेज बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट from equation 1 and equation 4. From equation 1 and equation 4 we can say that current leads voltage in phase by pi by 2 रेडियन, राइट? करंट का फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. वोल्टेज का फेज क्या है? ओमेगा टी. तो करंट का फेज ओमेगा टी से कुछ ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है? पाई बाई 2. तो हम क्या लिखेंगे? करंट लीड्स वोल्टेज इन फेज बाय पाई बाय 2.
क्या ठीक। तो ये हमें फेज डिफरेंस पता चल गया। फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का। पर यहाँ पे करंट लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। इंडक्टर वाले केस में क्या था, करंट लेग कर रहा था, करंट पीछे था फेस में, -π/2 था वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, +π/2। क्या ठीक। तो ये हो गया डिफरेंस। इंडक्टर कनेक्ट करेंगे तो करंट लेग करेगा, करंट लेग्स वोल्टेज इन फेज बाय π/2 जब इंडक्टर कनेक्ट करेंगे। कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट लीड्स वोल्टेज इन फेज बाय π/2। नाउ हियर इफ यू वांट टू ड्रॉ द फेज डायग्राम, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक वन रेफरेंस लाइन। ये ले लेते हैं टाइम t = 0। क्या ले लेते हैं, टाइम t = 0। कुछ समय बढ़ने के साथ मान लो यहाँ पे मिल रहा हमें OA वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर दैट इज VM। एट टाइम t this rotating vector rotates by this much angle omega t। ये टाइम t = 0। मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर दैट इज VM, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज और एम्पलीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। OA वेक्टर इज इक्वल टू VM। सो हियर इफ आई ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस OA वेक्टर on this vertical axis, then this projection will give me value of voltage at any instant t that is Vm sin omega t। क्या ठीक, ये हमें दे देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। नाउ एट टाइम t व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t प्लस π/2। करंट कितना आगे है, π/2 आगे। पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट इज Im। सो करंट वी विल गेट ओवर हियर, करंट हमें कुछ यहाँ पे मिलेगा, दिस इज Im एंड एंगल बिटवीन दिस Vm एंड Im दैट इज 90 डिग्री। Vm से कितना आगे है करंट, 90 डिग्री, π/2 रेडियन। क्या ठीक। देयरफॉर फ्रॉम दिस फेज डायग्राम ऑल्सो वी कैन से दैट करंट लीड्स वोल्टेज इन फेज बाय π/2 रेडियन। करंट लीड कर रहा है, कितना आगे है, π/2 रेडियन। चलो अब मैं इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा हमें, वर्टिकल एक्सिस पे ये वैल्यू क्या मिलेगी, Im sin ओमेगा t प्लस π/2। क्या ठीक, ये मिलेगा हमें Im sin ओमेगा t प्लस π/2 एट टाइम t। क्या ठीक। सो दिस वे वी कैन ड्रॉ द फेज डायग्राम। तो फेजर मेथड से भी हमें पता चल रहा है कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, π/2। पर यहाँ पे करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लेग कर रहा है। करंट से कितना लेग कर रहा है, वोल्टेज π/2। ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ voltage versus omega t and current versus omega t, then the graph will be, पहले वोल्टेज का ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट टेक ओमेगा t इज इक्वल टू 0, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। एंड वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ साइन, देयरफॉर वी विल गेट सिन्यूसॉइडल कर्व, सो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व। क्या कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा हमें, दिस इज द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस ओमेगा टी। क्या ठीक। अब करंट के लिए ड्रॉ करें तो करंट के लिए ओमेगा टी रखो 0, तो साइन π/2, साइन π/2 मतलब क्या हो जाएगा, साइन 90 दैट इज 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट वी विल गेट। तो ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ I वर्सेस ओमेगा टी। क्या ठीक, समझ में आया, एकदम परफेक्ट। ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई। क्या ठीक।
तो करंट वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ, करंट वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, वोल्टेज वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ मैंने ब्लैक कलर से दिखाया। क्या ठीक? अब मुझे बताओ वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे 0, करंट की वैल्यू 0 होने में कितना समय लग रहा है? ये हो गया एंगल π/2 और साइकिल क्या हो जाएगी T/4, 1/4 साइकिल। तो इतने समय के बाद करंट जो है वो 0 होगा। ठीक है, मतलब करंट आगे है, वोल्टेज पहले 0 हो गया, करंट उसके बाद 0 हो रहा है। सो करंट लीड्स वोल्टेज इन फेज बाय π/2। फ्रॉम हियर ऑल्सो इट इज क्लियर दैट करंट लीड्स वोल्टेज इन फेज बाय π/2। क्या ठीक? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Im? Im हमें क्या मिला? Im दैट इज Vm अपॉन XL, राइट? Im is equal to Vm upon XL. Now if I want to draw the graph of XL versus ओमेगा, किसके वर्सेस ओमेगा? सॉरी XL नहीं आएगा, क्या आएगा? XC। क्या आएगा? XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Im इज इक्वल टू Vm अपॉन XC। XC वर्सेस ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ करूं, क्या बनेगा? मुझे बता XC क्या था? 1/ωc। यस और नो? तो XC का ग्राफ कैसा बनेगा? XC वर्सेस ओमेगा का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्या ठीक? जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा XC घटेगा। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ XC वर्सेस ओमेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू XC। मतलब जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा XC घटेगा, ये घटेगा, करंट बढ़ेगा। यस और नो? सो एज ओमेगा इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेज लाइक दिस इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज लाइक दिस। क्योंकि ये इक्वेशन लिखे तो क्या बनेगा? Im इज इक्वल टू Vm अपॉन 1/ωc, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर Vm इंटू ωc। सो Im इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, दिस वे करंट विल इंक्रीज। सो Im वर्सेस ओमेगा, दिस इज XC वर्सेस ओमेगा का। क्या ठीक? समझ में आया? एकदम परफेक्ट। चलो गुड। फेजर मेथड हो गई, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब किसकी बारी? पावर की बारी। अब हमें ऑब्टेन करना है पावर का इक्वेशन। पावर का इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए। तो जल्दी से इतना लिख लो, फिर हम इक्वेशन डिराइव करते हैं पावर का। एवरेज पावर वी विल फाइंड ओवर वन पीरियोडिक टाइम। So instantaneous power P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है? V इंटू आई, राइट? व्हाट इज V? Vm साइन ओमेगा टी। व्हाट इज I? Im कॉस ओमेगा टी। क्या ठीक? तो यहाँ से बनेगा पावर P इज इक्वल टू Vm Im बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। क्या कर दिया? जादू। Vm Im बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। कुछ भी नहीं किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। याद करो ये कोई फॉर्मूला बनता है, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। किसका फॉर्मूला है? पावर P इज इक्वल टू Vm Im बाई 2 नहीं आएगा, अब क्या आएगा? साइन 2 ओमेगा टी। सो पावर P इज इक्वल टू Vm Im बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, बिकॉज साइन 2 ओमेगा टी इज नथिंग बट 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। क्या ठीक? तो ये मिला हमें पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। बट वी आर इंटरेस्टेड इन एवरेज वैल्यू ऑफ पावर। एवरेज
वैल्यू ऑफ पावर ओवर वन साइकिल, दैट इज क्या बनेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर ओवर वन साइकिल, Vm/Im/2 दैट इज कांस्टेंट, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, क्या बने एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, पढ़ा हुआ याद है, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी 2 ओमेगा टी 0, तो ये क्या बनेगा 0, देयरफॉर पावर एवरेज पावर ओवर वन साइकिल दैट इज 0, बिकॉज एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। क्या ठीक, चलो तो ये मिल गया हमें एवरेज पावर का फॉर्मूला। सो एवरेज पावर डिसिपेटेड इज 0 ओवर वन साइकिल और ओवर वन पीरियोडिक टाइम। तो यहाँ पे भी एवरेज पावर की वैल्यू क्या मिली 0, इंडक्टर में भी क्या मिली थी 0, पर रजिस्टर वाले केस में 0 नहीं थी। उसमें क्या फॉर्मूला बना था एवरेज पावर का, I² RMS इंटू R। एवरेज वैल्यू ऑफ पावर ओवर वन साइकिल इज 0 व्हेन AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। क्या ठीक, ओके तो ये लाते हैं, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम t। वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, वोल्टेज का इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। क्या ठीक, तो वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करें टाइम t के साथ, तो टाइम t 0 ले लूँ तो ग्राफ क्या यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या ठीक, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये हो गया 0, ये हो गया t/4, ये हो गया t/2, ये हो गया 3t/4 और ये हो गया टाइम t। क्या ठीक, तो ये कंप्लीट साइकिल हो गई। चलो अब करंट के लिए ड्रॉ करें, तो करंट का ग्राफ क्या बनेगा, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t प्लस π/2 था। क्या ठीक, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा, t 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या बन जाएगा साइन 90 साइन 91, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्या ठीक, when AC voltage is applied to a capacitor and when current flows through this circuit then this capacitor will get charge। ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ये प्लेट हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। क्या ठीक, क्या दिख रहा है, चलो ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। क्या ठीक, फ्रॉम टाइम 0 to t/2 कहाँ पे जा रहे हैं, 0 to t/4, 1/4 साइकिल ले रहे हैं, 0 to t/4। वोल्टेज बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस, वोल्टेज बढ़ता जाएगा। वोल्टेज बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, दिस कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज, सो फ्रॉम 0 to t/4 कैपेसिटर गेट्स चार्ज, ये चार्ज होता जाएगा। क्या ठीक, तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा, राइट। व्हेन वोल्टेज बिटवीन दिस टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बिकम्स मैक्सिमम, कहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, t/4 एट t इज इक्वल टू t/4 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बिकम्स मैक्सिमम and capacitor is said to be fully charged at t is equal to t/4 capacitor that is
फुल्ली चार्ज। कौन? कैपेसिटर। कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, पूरा चार्ज हो गया। व्हेन कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज एट द टाइम इट ऑपोजिट्स द करंट एंड वैल्यू ऑफ करंट विल बिकम जीरो। ध्यान से देखो, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट क्या मिल रहा? जीरो मिल रहा है कि नहीं? एट द टाइम नो करंट विल फ्लो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, इतने छोटे से टाइम के लिए करंट क्या हो जाएगा? जीरो। क्या ठीक? ओके, ये बात हुई 0 to T/4 के लिए। किसके लिए हुई? 0 to T/4। अब आगे बढ़े, T/4 to T/2 में क्या होगा? T/4 to T/2, ध्यान से देखो, वोल्टेज बिटवीन दिस टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस, इट मीन्स चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल डिक्रीज। यहाँ पे चार्ज कम होता जाएगा, चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। यस और नो? V = Q/C, यस और नो? तो यहाँ पे जैसे जैसे चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल कम होने वाला है। करंट देखो, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा और चार्ज भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज मान लो कि फिर क्या हो गया? कम, ठीक। और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया? कम। फ्रॉम T/4 to T/2, कहाँ किसके लिए बात कर रहा हूँ? T/4 to T/2। From T/4 to T/2, T/4 to T/2, what will happen? Charge on the capacitor goes on decreasing. It means capacitor will get discharged. That is the discharging of capacitor. Discharging of capacitor takes place. Correct? Now, अब ये डिस्चार्ज होता जाएगा एट T/2, एट T = T/2 दिस कैपेसिटर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज। वोल्टेज क्या हो गया? जीरो, मतलब चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। एट T = T/2 कैपेसिटर गेट्स कंप्लीटली डिस्चार्ज। कैसा हो जाएगा? कंप्लीटली डिस्चार्ज। अब किसकी बारी? T/2 to 3T/4। फ्रॉम T/2 to 3T/4 व्हाट विल हैपन? फिर से सर्किट कंसिडर करें। अब पहले ये था पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्या ठीक? अब ये प्लेट हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। पोलैरिटी ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल चेंज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिला? नेगेटिव। यस और नो? पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर विल गेट चेंज फ्रॉम T/2 to 3T/4। अगेन द कैपेसिटर गेट्स चार्ज, दैट इज चार्जिंग कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है? चार्जिंग कंडीशन। कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा। एट T = 3T/4 पोटेंशियल दैट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम पोटेंशियल मिला। क्या ठीक? ये वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। मुझे था वोल्टेज कैसा मिला? मैक्सिमम, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
एट टी इज इक्वल टू 3t/4 कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। क्या मिला? कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, कंप्लीटली चार्ज। क्या ठीक? वैसे ही बताओ 3t/4 टू t में जाएं तो पोटेंशियल घटे, पोटेंशियल घटेगा मतलब चार्ज कम होता जाएगा, तो चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा। फाइनली एट टाइम t व्हाट विल हैपन? पोटेंशियल विल बिकम जीरो। व्हेन पोटेंशियल बिकम जीरो देन कैपेसिटर इज सेड टू बी कंप्लीटली डिस्चार्ज, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या ठीक? सो फ्रॉम 0 to t/4 this capacitor gets charge, t/4 to t/2 capacitor gets discharge, t/2 to 3t/4 again it gets charge, 3t/4 to t again it gets completely discharge। क्या ठीक? डिस्चार्ज होता जाएगा और फाइनली t पे क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। तो इस तरह से कुछ चार्ज जो है वो मोशन में है। क्या ठीक? पहले चार्जिंग हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर से चार्जिंग हुआ, पर कौन सी पोलैरिटी चेंज हो गई? यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। क्या ठीक? समझ में आ रहा है? कुछ ऐसी प्रोसीजर हो रही है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बताओ 0 to t/4 वोल्टेज दैट इज पॉजिटिव, करंट दैट इज पॉजिटिव, क्या दोनों पॉजिटिव? यस और नो? देयरफॉर पावर P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? पावर P इज इक्वल टू VI। कहाँ पे लिखें? यहाँ पे लिखते हैं 0 to t/4 पावर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रेटर देन 0, पावर P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, देन पावर दैट इज ग्रेटर देन 0। इफ पावर इज ग्रेटर देन 0 देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सोर्स से एनर्जी लेगा। चार्जिंग होता जा रहा है 0 to t/4 में, तो एनर्जी ले रहा है चार्ज होने के लिए। क्या ठीक? तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब t/4 to t/2, t/4 to t/2। नेक्स्ट 1 क्वार्टर साइकिल के लिए आ जाएं, t/4 to t/2। मुझे बता वोल्टेज क्या है? वोल्टेज क्या है? पॉजिटिव, पर करंट क्या है? नेगेटिव। वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, तो पावर क्या बनेगा? पावर दैट इज लेस देन 0। ध्यान से देखो, पावर क्या बनेगा? लेस देन 0। इट मीन्स एनर्जी इज रिटर्न्ड टू द सोर्स। सोर्स को एनर्जी वापस दी जाती है। क्या ठीक? पहले सोर्स से एनर्जी ली, चार्ज हुआ, t/4 to t/2 में क्या हुआ? डिस्चार्ज हुआ, सोर्स को एनर्जी वापस। फिर से आ जाओ t/2 to 3t/4 वोल्टेज नेगेटिव, करंट नेगेटिव, सो पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से पावर पॉजिटिव, तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होगा। 3t/4 to t में आ जाओ, वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, तो पावर लेस देन 0, एनर्जी वापस दे देगा। लो भाई मैं डिस्चार्ज हो गया, ले लो वापस। क्या ठीक? समझ में आया? तो कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जब हम AC सोर्स कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर के साथ। क्या ठीक? सो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर ओवर 1 cycle is 0 when we connect AC source with capacitor. When we consider purely capacitive circuit, at the time average value of power over 1 cycle is 0। क्या ठीक? तो जो सेम प्रोसीजर हम रिपीट करते हैं रेजिस्टर वाली सर्किट में, इंडक्टर वाली सर्किट में, वही यहाँ पे भी रिपीट करना है। तो याद रख लो क्या क्या निकलना होता है जब AC सोर्स को कनेक्ट करते हैं। तो पहले क्या करना होता है? हमें करंट का इक्वेशन निकालना होता है। एक बार करंट मिल गया तो फिर क्या करना है? फेज डिफरेंस पता लगाना है। फेज डिफरेंस मिल गया फिर क्या करना है? हमें फेजर मेथड से फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। फेजर डायग्राम के बाद हम क्या ड्रॉ करते हैं? ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद क्या निकालते हैं? पावर। पावर मिल गया फिर थियरी ख़त्म। क्या ठीक? तो इस तरह से हमने तीनों सर्किट सॉल्व कर ली हैं। AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर, AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर।
तीनों थियरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को कोई क्वेरी होगी नहीं, अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें आसान लग रही होंगी, क्या ठीक? अब नेक्स्ट टाइम इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद तीनों कंपोनेंट को साथ में कनेक्ट करेंगे, इंडक्टर को, कैपेसिटर को और रेजिस्टर को। बहुत ही मज़ा आने वाला है, पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें लर्न कर लेनी चाहिए, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, पर आज तक के लिए इतना ही। आप लोगों को टाइम चाहिए होगा इसको लिखने के लिए, शांति से लिख लेना है। यहाँ पे मैं लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें।